Very good afternoon, everyone. Am I audible? Okay, thank you, Rishabh. Ritik, thank you. Diksha, thank you. So let me share the screen. Once again, let me know, is it visible? Okay, thank you, Rishabh. Yeah, good afternoon, Abhilash. Thanks, everyone. थोड़ा सा मुझे रिमाइंड कराइए कि कहाँ तक हो गया था लास्ट लेक्चर में. आई थिंक robustness and boundary value analysis we have covered. क्या वर्स्ट केस टेस्टिंग भी हो गई है? I have mentioned is okay. I'm asking about worst case analysis. क्या ये हो गया है या नहीं, ये जरा बता दें. worst case testing और worst case analysis. Okay, Ritik. So let me start that topic. So that we already covered. Yeah, this we have to consider for today's lecture. So let's focus over here. The new testing technology or term is like worst case testing. So, however, too much theory portion is mentioned over here, but for our task is to just let me highlight it. So just consider the lines that I have drawn from here up to last. Okay. So if requires more effort, worst case testing for a function of n variables generate 5 raised to power n test cases as opposed to 4n plus 1 test cases for boundary value analysis. Our two variable example will have 5 raised to power 2
equal to 25 test cases and given are in table 1 that we will discuss later on. So first thing you have to remember that in case of worst case testing, the formula is like 5 raised to power n, where n is number of variables. So in the short example that is mentioned over here, if variables are 2, then 5 into 5, that means 25 test cases. But remember about previous examples where triangle example were there, calendar example was there, and quadratic equation was there. So in all the example previous we discussed, total 3 variables were there: a, b, c, or x, y, z, or whatever day, month, or year. So in that case, if we are supposed to solve these numericals with the help of worst case testing, then how many test cases will be there? Specifically, I'm talking about the triangle problem or quadratic equation that we discussed later. So just let me know, because 3 variables were there. Then as per worst case testing, how many test cases will be generated? Who will let me know? Mention in chat box. Not exactly Ritik. I'm talking about worst case testing. Focus over formula. Rishabh, what about you? Let me know the answer. Abhilash, Diksha, anyone? If 3 variables were there, A, B, C, or X, Y, Z, whatever you would like to say, then how many test cases will be there? Yes, okay, Ritik, great. Yeah, so I was informing ये जो अंडरलाइन आपके पास हो रखा है इसको एक बार देखें. Worst case testing for a function of, once again, Adarsh, this is not good. No, good means not the good answer, exact answer. Okay, देखिए सिंपल सा 5 raised to power n, where n is what, number of variables. So 5 raised to power 3. तो अब बताइए कितने टेस्ट केसेस बनेंगे, है ना? Yes, now it is Abhilash. Let me write. है ना? This should be the format. So that means 125 test cases will be there. So practically for a human being, it's not a cakewalk. कि आप एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए जिसमें 3 वेरिएबल्स हों और आपसे वर्स्ट केस पूछ ली जाए, क्योंकि 125 विल टेक टाइम और लिमिटेड टाइम फ्रेम है आपके पास. तो इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन तो बनता है कि अगर फॉर्मूला क्या है या इतने वेरिएबल्स हैं तो फॉर्मूला एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, दैट इज ओके. बट वो सारे टेस्ट केस हिसाब से लिखवाए जाएंगे, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज दैट डेफिनेटली विल टेक टाइम. However, in case of 2 variables, so that is mentioned over here, just 5 raised to power 2, then 25 test cases will be there. So this is quite possible कि भाई वो टेस्ट केसेस आपसे लिखवा लिए जाएं कि वो 25 कौन कौन से होंगे. सो जस्ट हैव अ लुक कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वर्स्ट केस में. नाउ लुक एट दिस. अब दो बातें ध्यान रखिएगा कि पहली चीज, वर्स्ट केस में हम करेंगे फॉर्मूला यूज 5 रेज टू पावर n, बट इट विल बी बेस्ड ऑन बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. कैसे, मतलब समझते हैं. देखिए x और y यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, सब लोग ध्यान से समझेंगे. x एंड y आर 2 वेरिएबल्स और इसकी रेंज हमको गिवन है, फॉर एग्जांपल 100 से लेकर के 300. तो लेट मी राइट. ओके, सो आई हैव मेंशनड 2 वेरिएबल्स हैं और x और y, इनकी रेंज है 100 से लेकर के 300. अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या 25 टेस्ट केसेस कैसे जनरेट हो रहे हैं वो देखेंगे. तो अगर इन वेरिएबल्स पर, इन रेंज पर हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लगाते तो क्या हो जाता कि एक एक पॉइंट तो उनकी एग्जैक्ट बाउंड्री पर, एक एट द मिडिल, और एक हमारा क्या होता जस्ट नेक्स्ट टू लोअर बाउंड्री, और एक हो जाता जस्ट प्रीवियस फ्रॉम द आउटर बाउंड्री. ओके, सो इन दैट केस आवर total number of points, test points, will be like 100, 101,
200 दैट इज मिडिल पॉइंट, 299 एंड 300। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स बनते हैं। वर्स्ट केस में ध्यान रखिएगा कि हमें पॉइंट्स जो टेस्ट केसेस हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं एज पर द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, नॉट एज पर द रोबस्टनेस टेस्टिंग। अगर रोबस्टनेस करते तो 6n+1 वाला केस हो जाता, यानी कि हम 99 भी कंसिडर कर रहे होते और 301 भी कर रहे होते। और अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 5n नहीं बनेंगे, है ना, दैट विल बी बियॉन्ड दैट। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये 5 केसेस हैं और उसका आंसर भी हमारा एज पर टेबल यू कैन सी टोटल 25 टेस्ट केसेस आर देयर। ओके, सो आप चेक करें, देखिए 1 से लेकर के 25 तक टेस्ट केसेस हैं हमारे पास। ओके, तो अब इनको हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे टेस्ट केसेस बने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक फर्स्ट वैल्यू दैट इज 100। तो किसी भी एक वेरिएबल को उस पर कांस्टेंट कर दीजिए, यानी कि फिक्स कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, x की वैल्यू को 100 पर फिक्स कर दिया हुआ है। कब तक के लिए फिक्स, जब तक कि 100 का कॉम्बिनेशन रेस्ट ऑफ द वैल्यू से ना हो जाए। तो जरा देखें, फर्स्ट वैल्यू 100, 100, 100, 101, 100, 200, 100, 299, 100, 300। So that means what, कि for x variable initially value is set up to 100। okay, अब 300 के बियॉन्ड तो कोई पॉसिबल वैल्यू है नहीं। so that means what, now it's time to change the value of x from 100 to 101। okay, and the same task will follow, like the possible combination of 100 to 100, 101 with 100, 101 with 200, 101 with 299, 101 with 300। लाइकवाइज अब देखिए एक एक करके सारे स्टेप्स देख लीजिए अप टू टेस्ट केस नंबर 25। और अगर कोई डाउट है तो पूछें। लुक एट ओवर हियर। और अगर कोई डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, सो दैट आई कैन मूव। गुड, so as you responded no doubt, then let's proceed. So this was an example having two variables. However, three variable का जैसे अभी हमने डिस्कस किया 125 टेस्ट केसेस will be there. The idea is same. कि firstly we will consider, we will try to find out the points as per boundary value analysis, and on these points we will apply worst case test casing. Okay, तो एक एग्जांपल सिर्फ देख लेते हैं हम थ्री वेरिएबल्स का, however it is too long, लेकिन एक आइडिया आपको मिलना चाहिए। So this is the example for nature of root quadratic equation. They are asking about robust test cases and worst case. So this one is the case for robust, no issue at all. Now look at this worst case test case, 5 raised to power n, that means 125 test cases. Now look at these test cases कि पहले क्या हुआ कि 0 पर वैल्यू सेट कर दी, ये देखिए इधर ये सारी वैल्यू 0 पर सेट हो गई। फॉर 5 टाइम्स 0 पर ये सेट हो गया, वन बाय वन वैल्यू इज गोइंग टू बी शफल्ड, 0, 1, 50, 99, 100. This is exactly as per the boundary value analysis. That means range is given as from 0 to 100. Okay. For next pass, value is 1, 1, 1, and likewise. Look at over here. अब देखिए जहाँ 100 तक पॉसिबल वैल्यू हो गई बी की, तो अब क्या हुआ, ए की वैल्यू को अब फ्रॉम 0 टू वी हैव मूव टुवर्ड्स 1। लुक एट ओवर हियर, यहाँ तक तो सब 0 चल रहा था, अब ये 100 आ गया, इधर भी 100 आ गया, दैट मीन्स नाउ इट्स टाइम टू शफल a variable. So now it is set up to a, up to 1. Okay, likewise.
check it thoroughly. So there is a question like, can anyone let me know what will be the value of ABC at test case number 125? कि टेस्ट केस नंबर 125 जो भी होगा उसमें एबीसी की वैल्यूज क्या होंगी, जरा देखें कौन आंसर कर पाता है. Anyone just reply what will be the values of ABC at test case number 125. ऋषभ, अभिषेक, ऋतिक, Abhilash, anyone? Surprisingly, no one is responding. Even then, there is no point to waste time. So just check it out. This should be the case. So let's proceed to the next topic. That is, one more type of testing is there as equivalence class testing. So that is going to be start from yeah, that is going to be started from page number 61. Meanwhile, in the morning, I got a message regarding video recording of 2nd December lecture. So I would like to inform you, however, I have already replied to so many number of students that there is no video available on Zoom platform as well for 2nd of December. So even this is not possible to me as well to share the video. Okay. Now look at equivalence class testing. In this method, input domain of a program is partitioned into finite number of equivalence classes such that one can responsibly assume but not be absolute sure that the test of a representative value of each class is equivalent to a test to any other value. I'm sure बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझते चलिएगा, और if you are having a paper and pen along with you, then you can also write. In equivalence class testing, you are supposed to divide your problem or program or question into two parts. पहला पार्ट क्या होगा जिसमें हम इनपुट रखेंगे, दूसरे पार्ट में हम आउटपुट रखेंगे, या ऐसे कह लीजिए पहले पार्ट में हम आउटपुट रखेंगे, दूसरे पार्ट में इनपुट रखेंगे. तो आउटपुट कैसे पता चलेगा? यूजुअली वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही मेंशन होता है. जैसे अगर आप लोगों ने कैलेंडर वाली प्रॉब्लम सॉल्व की होगी तो उसमें लिखा होगा कि उसके पॉसिबल आउटपुट क्या है, केवल दो ही थे, या तो प्रीवियस डेट आएगी या इनवैलिड डेट आ जाएगी. So that means only two possible outputs were there in that case. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में भी ऐसा नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस तरह की ट्राइंगल के केस में था, आइसोसेलेन था, नॉट अ ट्राइंगल था, इक्विलैटरल था, इस टाइप की कुछ वैल्यूज हमको गिवन थी, पॉसिबल ऑप्शंस गिवन थे. सो दैट मींस व्हाट, दीज आर द पॉसिबल आउटपुट्स दैट इज फेयरली मेंशन्ड इन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन. तो जितने पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं उतने ही हमारे आउटपुट होंगे, और उन सब के लिए हमें टेस्ट केसेस जनरेट करने हैं. गेटिंग इट? तो एक पेयर तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास का
मान लीजिए एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर मान लीजिए, इसको हायरार्की में लेते चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट नोड इज व्हाट? इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एज output and input. For output, all possible output that is mentioned in questions language. अब input पर आ जाइए. Input is what? Input can be further divided into some parts as valid and invalid classes. Okay, so let me try to just wait. आइए सर. अरे just wait. So you can draw this for your better understanding. Like this is the case that equivalence class testing can be divided into output and input domain. Output domain is simply the number of possible outputs given in question language, and input domain can be further divided into valid and invalid inputs. But we have to make it very clear, there may be one valid combination and two invalid combination. Yes, this is very important, that one valid and two invalid combinations. How it will take place? Let's have a look. So either you can take a snapshot or you can just draw it. So I'm waiting over here just half a minute. Okay.
So I hope you have taken either a snapshot or just noted down. So let me proceed. Yeah. So now look at the point number one. That is very important while defining these things. Look at over here. The equivalence classes are identified by taking each input condition and partitioning it into valid and invalid classes. ठीक है, तो इनपुट की बात हो रही है कि इनपुट में हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको भी फर्दर सेग्रीगेट किया, पार्टीशन किया इनटू valid and invalid classes. For example, if an input condition specifies a range of values from 1 to 999, then we identify one valid equivalence class, that is item is lying between 1 to 999. अब ये range valid क्यों है? Because it is mentioned in questions language. तो जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में रेंज गिवन हो वो तो उठा करके आप कर दीजिए वैलिड इनपुट, ओके, क्योंकि एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि रेंज के अंदर है। और रेंज से बाहर क्या होगा कि मान लीजिए जैसे 1 से लेकर के 999 तक रेंज थी, तो ये तो हो गया मेरा वैलिड। एंड टू इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस एज आइटम इज लेस देन 1 एंड आइटम इज ग्रेटर देन 999। अब क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट रेंज से बाहर हैं, सो दैट मींस दे विल बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड, दिस वन एंड दिस वन, ओके, क्योंकि एक रेंज से कम जा रहा है, एक रेंज से बियॉन्ड जा रहा है, तो दोनों ही इनवैलिड हो गए। सो एट दैट केस फॉर इक्विवेलेंस ऑलवेज रिमेंबर वी आर सपोज टू सेग्रीगेट आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट वो सब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इनपुट वैलिड एंड इनवैलिड, एक वैलिड और दो इनवैलिड। तो जरा बताएं यहाँ तक समझ में आ गया है सभी के? हरी अप। ओके ग्रेट, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये सिंपल सा एक डायग्राम है जो बेसिक आप कई बार ही देख चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। So directly moving towards the numerical portion. So okay, look at over here. हालांकि इसमें करेक्शन भी हो सब पॉसिबल है, तो वो भी हम देखेंगे। Consider the program for a determination of nature of roots of the quadratic equation as explained this in example 8.1. Identify the equivalence class test cases for output and input domain. तो आई होप कि सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एग्जांपल याद होगा, अगर नहीं है तो पीछे साइड पर मूव करते हैं, जस्ट वेट। यस, दिस वन वाज एग्जांपल। जल्दी से इसको या तो स्नैपशॉट ले लीजिए या इसको समझ लीजिए, वट एवर यू फील लाइक। दिस इज द केस, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे एज पर इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन टेक ए स्नैपशॉट। क्या करना है? कंसीडर प्रोग्राम फॉर टर्मिनेचर ऑफ रूट फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनपुट मे बी ट्रिपल ऑफ इंटीजर लाइक एबीसी एंड रेंज इज गिवन टू अस फ्रॉम 0 to 100। पॉसिबल आउटपुट, ये देखिए ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर। Possible outputs may be either not a quadratic equation, first type of output, real roots, second output, imaginary roots, third output, and equal roots, fourth output. तो इस वाले numerical में we are having just 4 possible outputs. So that means total number of test cases as per equivalence class testing will be 4 for output domain. ओके, इनपुट के लिए हम अलग आइडेंटिफाई करेंगे, आउटपुट के लिए अलग करेंगे। तो आउटपुट के लिए हमारे पास कितने हो गए? 4 पॉसिबल आउटपुट्स एज नॉट a quadratic equation, real root, imaginary roots and equal roots. Okay, so now let me proceed to the actual question. Yes, this was the question. तो अब क्या करना है? Identify the equivalence class test cases for output and input domain. So let's have an answer. देखिए जरा, output domain equivalence class test can be identified as follows. Output 1 may be for ABC, not a quadratic equation when if A is equal to 0। अगर A ही 0 है तो क्या होगा? Not a quadratic equation, first case। Second case, real roots if B square minus 4AC is greater than 0। Imaginary if B square minus 4AC is less than 0, and if B square minus 4AC equal to exact 0, then it will be equal roots. So the number of test cases can be derived from above relation may be shown like this. Look at over here.
इवन यू कैन टेक a snapshot over here for आउटपुट डोमेन। देखिए 4 तरह के पॉसिबल आउटपुट थे, हर एक का एक एक केस ले लिया हमने, तो ये 4 आउटपुट डोमेन के टेस्ट केसेस हो गए हमारे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? If no confusion, then you can mention no doubt in chat box. Okay, great. So let's proceed. तो अब देखिए, अब हमारा काम क्या है? इनपुट डोमेन्स के टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई करना। इनफैक्ट आउटपुट के तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही लिखे रहते हैं, बस उनको अरेंज करना होगा हमको, है ना? तो देखिए ये सब तो लिखा ही है, केवल वैल्यूज वो वाली ले लेनी है जिस पर ये वैल्यू एक्सपेक्टेड आउटपुट सेटिस्फाई हो जाए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर इनपुट। अब यहाँ ध्यान से देखें, मैं कुछ करेक्शन भी कर देता हूँ यहाँ पर। स्पेसिफिकली आई एम डूइंग समथिंग फॉर दिस वन। ओके, तो एक पोर्शन तो यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, वो प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। जी, अब ये देखिए, इन्होंने 4 टेस्ट केस लिखे हुए थे एज I1, I2, I3, I4। इनकी जगह मैं इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता था एज वट एवर आई हैव मेंशन्ड एज I1, I2 एंड I3। तो I1 को देखते हैं पहले। ए के लिए हम चेक कर रहे हैं, कंडीशन इज व्हाट? ए इज लेस देन इक्वल टू 0 से लेकर के 100 तक, यानी कि ए इज लाइंग बिटवीन 0 to 100। कि अगर 0 से लेस होगा तो भी वो चला जाएगा बेकार, और उससे बियॉन्ड जाएगा तो भी बेकार, है ना? दूसरा केस इनवैलिड के लिए क्या हो सकता है? ए इज लेस देन 0। तीसरा I3 के लिए ए इज ग्रेटर देन 100। हाउएवर यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग एज वेल। लुक एट ओवर हियर, दिस थिंग्स, है ना? इन्होंने क्या ले लिया? 1 से लेकर के 100 तक लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जहां पर ये चेक करना था ए इज इक्वल टू 0, तो भी हमारा एक पॉसिबल आउटपुट था, है ना? इसकी वजह से तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। बाकी हमारे देखिए, ए वैलिड, ये वाला इनवैलिड, this one is invalid, this one is invalid, this one is invalid, this invalid and this one is valid। तो देखिए, एक वैलिड, दो इनवैलिड, और जो मैंने आइडेंटिफाई किया इसमें ये वैलिड एंड दीज टू में बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड, है ना? तो इस तरह से हम पार्टीशनिंग कर लेंगे कि एक वैलिड लेना है इनपुट और दो इनवैलिड ले लें। अब इनको लिखेंगे कैसे टेबल में, वो देख लीजिए। जस्ट चेक इट थॉरोली, और यहाँ तक कोई डाउट हो तो फिर पूछिए। आई एम गिविंग 1 minute टू एवरीवन।
If it is clear to you, then you can mention in chat box that clear or not clear, whatever. देखिए टोटल 10 टेस्ट केसेस बन रहे हैं, जहाँ पर पहला वाला तो ए इज इक्वल टू 0 लिया हुआ था, तो उसी के लिए मेंशन किया हुआ है। दिस वन रेस्ट हमारा क्या था, -1, 50, 101, और इन सब के अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज लेनी है जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ओके, एक वैलिड, दो इनवैलिड। तो देखें ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, ये वाला वैलिड हो गया। गेटिंग इट? तो इसी तरह से इन्होंने सारे टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ यू कैन चेक फॉर अनदर एग्जांपल। अब ये देखिए प्रीवियस डेट वाला, दो ही पॉसिबल आउटपुट थे, आइदर दिस वन और दिस वन। या तो प्रीवियस डेट आएगी या इनवैलिड डेट आएगी। तो कब आएगी प्रीवियस डेट? जब ऑल वैलिड्स इनपुट विल बी देयर। और अगर कोई एक इनपुट इनवैलिड हो जाता है तो वो हमारी इनवैलिड डेट मेंशन करते हैं। जैसे सेकंड केस देखें, 31 जून 1962, ये इनवैलिड डेट क्यों? क्योंकि 31 जून कभी आएगी ही नहीं। ओके, तो अब दो पॉसिबल आउटपुट डोमेन हो गए। अब इनपुट देख लेते हैं, एक वैलिड, दो इनवैलिड। चेक इट। देखिए ये वैलिड क्यों? क्योंकि ये हमें रेंज में गिवन था, मंथ 1 से लेकर के 12 के बीच में ही होंगे, है ना? तो इसलिए वैलिड है। मंथ लेस देन 1, ये तो कभी होगा ही नहीं, इसलिए इनवैलिड। मंथ ग्रेटर देन 12, ये भी इनवैलिड, क्योंकि इससे बियॉन्ड कभी हमने सोचा ही नहीं, कुछ हो भी सकता है। डे 1 से लेकर के 31 तक, अगेन वैलिड। और अगर डे लेस देन 1, जीरो डेट कभी नहीं आएगी, डेट 31 से ऊपर कभी नहीं जाएगी, दैट मीन्स दे बोथ आर इनवैलिड। सिमिलरली ईयर 1900 टू 2025, अब ये रेंज स्पेसिफिकली गिवन थी क्वेश्चन की लैंग्वेज में, तो दैट मीन्स दिस इज ओनली वैलिड। इससे बियॉन्ड जो भी जाएगा वो इनवैलिड। So that means year less than 1900 invalid, year greater than 2025 again invalid, because it is beyond the range, that's why. Okay, तो इनके टेस्ट केसेस देख लीजिए। Look at over here. So this is what, एक वैलिड, दो इनवैलिड। एक वैलिड, दो इनवैलिड। Similarly this one is valid and these two are invalid. Check it thoroughly, जरा चेक करें सारी वैल्यूज, और यहाँ तक कोई डाउट है तो फिर पूछिए। Is it clear to everyone? Okay, great. So similarly, you can go for third type of numerical, that is triangle problem. Once again, these four conditions were given to you, so that means total four output test cases will be there. And as far as input, so you can check one valid and two invalid. So देखिए I1, I2 are invalid, I3 is valid, I4, I5 again invalid, I6 is valid, I7, I8 once again invalid,
while I9 is valid. So through this combination you can proceed with like this. तो पहले output के और बाद में possible combinations. Okay, so these can be test cases. So this is all for today. In the next lecture we will discuss about decision table based testing. So my suggestion is कि अब जितना भी कंटेंट बचा है आप लोग प्लीज इसको पढ़ते रहिए, तो थोड़ा टाइम कम लगेगा समझने में. ओके, तो अगले 2 लेक्चर में हम काफ़ी सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं. सो प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस वन एंड रेफरेंस मटेरियल आल्सो आई शेयर टुडे फॉर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस. तो वो तो टोटली आपको ही करना है. उसमें अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क और गो थ्रू एज पर द mentioned in syllabus. Okay, so this is all about from my side. If any query then you can ask. One more thing I would like to suggest to you guys कि देखिए काफ़ी सारे लेक्चर के हमने आपको पीडीएफ जो सेंड किए हैं उन लेक्चर्स के एंड में एमसीक्यूज हैं. ठीक है ना, तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि सभी लोग उन एमसीक्यूज को जरूर देख लें. है ना, क्या क्या हो सकता है कि वहां से ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन जाए. तो जैसे टेस्टिंग में भी है, रिलायबिलिटी में भी है, मेंटेनेंस में भी है, तो इन सब के बहुत फेयर नंबर ऑफ एमसीक्यूज फॉर देयर. तो एक बार वो भी ऐसे भी लोग गो थ्रू हो उसमें.